Let's start the bill of exchange. Bills of exchange. A bill of exchange has been defined as an instrument in writing containing an unconditional ordered signed by the maker, certain person, certain sum of money, and certain ordered and bearer to of the instrument. Parties in bill of exchange 1 2 3 ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई. Drawer, who writes the bill, drawee, whom the bill is drawn, pay, who will receive the money. Now let's talk about promissory note. Promissory note is an instrument in writing, not being a banknote or currency note, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money. RBI restrict promissory note note cannot be made payable to bearer. Now let's talk about difference between bill of exchange and promissory note. Now on the basis of definition, bill of exchange is an order to pay. Promissory note is promise to pay. Now let's talk about on the basis of parties. There are 3 parties in BOE.
First one is drawer, who writes, draw, whom to write, pay, whom to receive. Now let's talk about promissory note. How many parties? There are two parties. First one is maker, and then another one is pay. Now on the basis of paid, in case of bill of exchange, a bill is paid by acceptor. By acceptor. Now on the basis of promissory note, is paid by maker. On the basis of condition, a bill of exchange can be accepted by conditionally by conditionally, and promissory note cannot be made conditionally. Now on the basis of dishonor, in case of BOE, notice of dishonor is required. In case of promissory note, not required. In case of promissory note, now this is enough for exam. Now let's solve the illustration 1 and see the journal entries, how they works. Mr. Suraj receives two bills from Mr. Aruna and date 1st January 2022 for 2 months, and the first bill is 10,200 and the second bill is 15,000, and the bill is discounted immediately with the bank of 10,000, and the second bill was endorsed in the favor of Mr. Sari on the 3rd January 2022, and they passed the necessary journal entry in the books of account. Let's see how it's solved. सी इस क्वेश्चन में क्या था, सुजुता नाम की एक मिस थी जिसको 2 बिल रिसीव हुए मिस्टर अरुणा से, मिस अरुणा, ये भी अरुणा है, मिस अरुणा से। एक बिल तो था 10,200 का, दूसरा बिल था 15,000 का। ठीक, पहले बिल को उसने क्या करवा लिया, पहले बिल को डिस्काउंट किया, बैंक में जाके बिल दिया 10,200 के बदले 10,000 का पैसा तुरंत ले लिया इमीडिएटली। तो 200 का जो ये है ना डिस्काउंट, अब आपका बिल 1 महीने बाद आपको मिलने वाला था, मैच्योर होने वाला था, वो आप अभी एंडोर्स करवा रहे हो, मतलब अभी आप उसके पैसे ले रहे हो, तो बैंक का तो नुकसान होगा। तो बैंक क्या करती है, 200 रुपये उसने काट लिया, अपना उसने ले लिया 200 रुपये, और ये 200 का जो डिस्काउंट हुआ, ये किसका नुकसान हुआ, सुजुता का। ठीक, और जो दूसरा बिल था वो 15,000 का, जो वो भी 2 महीने बाद मैच्योर होने वाला था, उसको क्या किया उसने, सेंड कर दिया मिस्टर सरी को। मिस्टर सरी को बोल दिया, अगर उसके साथ उसका कोई क्रेडिटर का होगा रिलेशन, तो उसने क्या किया कि जब 2 महीने बाद आप जाके आप उससे पैसा ले लेना, आपका लेन देन ख़त्म हो जाएगा। तो उसने एंडोर्स कर दिया मिस्टर सरी को, और आगे कुछ नहीं हुआ, बस बोला कि एंट्री पास कर दो। नाउ सी, मिस सुजुता को 2 बिल मिले, इसका मतलब
मिस सुजुता ने कुछ सेल किया होगा। अरुणा मिस जो होगी, मिस अरुणा, वो उसकी डेटर होगी। तो अगर हम एक एंट्री बनाना चाहें, ये एंट्री सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, जैसे कि अरुणा मिस अरुणा टू सेल्स, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, ठीक है, सेल्स। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये जो सेल है इसको हमें किस में चेंज करना है, हमें बिल रिसीव हुए हैं तो बिल रिसीवेबल में हमें इसको चेंज करना है। हम क्या करेंगे, सेल को क्या करना, बिल्स रिसीवेबल टू। अब ये जो अरुणा है, मिस अरुणा, अब ये डेबिट है, डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है, टू अरुणा। ये हुई हमारी एग्ज़ाम पर्पज से पहली एंट्री। हम चाहे तो अलग अलग दोनों बिल को दिखा सकते हैं, अगर हम चाहे तो एक साथ भी दिखा सकते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए इलस्ट्रेशन 1 है तो हम अलग अलग दिखाते हैं। कितना, पहला 10,200 का, दूसरा 10,200 का। डेट कितना है, 1/1/2022, 1/1/2022। अब दूसरी एंट्री आती है, हमने बिल को मैच्योर होने से पहले ही हमने क्या किया, बैंक में डिस्काउंट करवाया, इसको करवाया ना। अब अगर इनकम आती है, पैसा मिलता है, प्रॉफिट्स आते हैं, तो हम क्या करते हैं, बैंक को डेबिट, पैसा आ रहा है तो डेबिट करेंगे, जा रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। बैंक में हमारे इमीडिएटली 10,000 रुपये आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000। ठीक, अब यहाँ पे 2, अब ये जो बिल है, ये बिल अब हमारे पास तो नहीं, बैंक के पास चला गया है। अब इस चीज़ को ही कैंसिल करने के लिए डेबिट में अब उसको क्रेडिट करेंगे, बिल रिसीवेबल। अब बिल हमारा कितने का था, बिल हमारा 10,200 का था और हमें सिर्फ 10,000 मिले, मतलब 200 का हमें क्या हुआ, नुकसान हुआ। नुकसान, सारे लॉसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस, 200 का डिस्काउंट चार्जेस। अब नाउ डेबिट एंड क्रेडिट से बोथ आर इक्वल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड एंट्री। थर्ड में क्या किया हमने, एंडोर्स मतलब हमने जो दूसरा वाला बिल था वो सरी को दे दिया, मिस सरी। अब ये जो बिल है मिस सरी को जा रहा है, तो जिसको हम दे रहे हैं उसका नाम डेबिट करेंगे, सरी। ठीक, अब ये जो बिल है, वेट, हमने जो पहला वाला जो बिल था 10,200 वाला, तो उसको कर दिया, और जो दूसरा बिल था जो हमारा कितने का था, 15,000 का, उसको हमने नहीं दिखाया। अब हमने इसके लिए जगह तो छोड़ी नहीं, हम इसी में जोड़ देते हैं, 25,200 हो जाएगा। ठीक है, 25,200 हमने ऊपर वाली एंट्री में ही जोड़ दिया। हमने उस टाइम लिखा नहीं था, मुझे लगा कि हम नीचे लिख लेंगे, पर हमने ध्यान नहीं दिया। अब नाउ टॉक अबाउट ये थर्ड। अब जब एंडोर्स करा दिया तो एंडोर्स की एंट्री सरी। अब बिल तो रहा नहीं हमारे पास भी, अगर हमारे पास बिल होता तो हमने डेबिट किया था बिल को, अब बिल हमने सरी को दे दिया। अब डेबिट की हुई चीज़ को अगर कैंसिल करना है तो उस टाइम उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, तो क्रेडिट कर देते हैं, टू बिल्स रिसीवेबल। कितना, अब ये जो 25,200 है इसमें 10,200 का पहला वाला बिल है, दूसरा वाला बिल हमारा कितने का है, 15,000 का, तो हम यहाँ 15,000 लिख देंगे, 15,000। अब 15,000 हो गया, बस इतनी ही एंट्री आएगी। देखो ये आ गई, ये दोनों बिल को कंबाइन करके दिखा दिया इसमें, ये बैंक की, ये डिस्काउंट की, जब चार्ज करवाया 200 का चार्ज लिया बैंक ने, लॉस था तो डेबिट किया। फिर ये बिल रिसीवेबल, क्योंकि जब बिल हमारा बैंक के पास चला गया तो बिल तो हमारे पास बचा नहीं, अब डेबिट वाली चीज़ को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट किया। ठीक, फिर सरी को दिया, अब यहाँ बिल को डेबिट को क्रेडिट किया कैंसिल आउट करने के लिए ना। जब बिल हमारे पास होता है तो उसको डेबिट करते हैं, जब हम बिल किसी को देते हैं तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है, क्योंकि उधर भी डेबिट दिख रहा है इधर भी नहीं हो सकता ना, अकाउंटिंग है।
अगर एक चीज़ यहाँ डेबिट आप कर रखे हो, अगर आप उस चीज़ को किसी को दे रहे हो तो आपको अपने अकाउंट से, अपने बुक से उसको हटाना पड़ेगा। अब जब बिल रिसीवेबल हमारे पास था तो हमने डेबिट किया था क्योंकि वो हमारे पास था। अब जब बिल रिसीवेबल हम सरी को दे रहे हैं तब वो हमारे पास तो नहीं, वो सरी के पास है, तो उस डेबिट वाली चीज़ को कैंसिल आउट करने के लिए हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्रेडिट किया। ठीक है, पहली एंट्री का मतलब पहला इलस्ट्रेशन खत्म, हम सेकेंड इलस्ट्रेशन करते हैं। ऐसे करते करते सारे कर लेते हैं, फिर ये प्रैक्टिकल हो जाएंगे। फिर मेरे पास स्कैनर है, स्कैनर के क्वेश्चन जितने भी होंगे सारे सॉल्व करेंगे जितने हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सी द इलस्ट्रेशन 2। विजय sold goods to Pritam on 1st September 2022 for 1,06,000 and Pritam immediately accepted a 3-month bill. On the due date, Pritam requested that the bill be renewed for a fresh period of 2 months and Vijay agreed and provided interest at 9% per annum and was paid immediately in cash. And to this Pritam was agreeable and the second bill was met on the due date and give the journal entry in the books of Vijay and Pritam। यहाँ पे दोनों का बुक बनाना है, विजय एंड प्रीतम। अभी हम विजय का कर लेते हैं, ठीक है, प्रीतम का हम बाद में करेंगे। नाउ सी द समरी ऑफ दिस इलस्ट्रेशन। यहाँ पे विजय नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, विजय को बिल रिसीव हुआ। अब बिल किस लिए रिसीव हुआ? क्योंकि विजय ने सेल किया। विजय ने सेल किया किसको? प्रीतम को। कितने का? 1,06,000 का। 1,06,000 का प्रीतम को सेल किया। प्रीतम ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी। तो उसने बोला कि मैं आपको बिल देता हूँ। तो विजय ने बोला ठीक है, मैं बिल बनाता हूँ तुम्हारे नाम के ऊपर। बिल बनाया। बिल जब बनाया तो वो था 3 महीने का। वो था 3 महीने का, ठीक। फिर 3 महीने जब मैच्योरिटी डेट आई, यहाँ पे प्रीतम बोल रहा है कि प्लीज़ आप बिल फ्रेश दोबारा से बिल को रिन्यू कर दो। इसी बिल को रिन्यू किया फिर, ठीक है, रिन्यू किया। अब विजय बोल रहा है जब मैंने तुमको 3 महीने का टाइम दिया, अब तो फिर मुझसे टाइम मांग रहा है, तो उसमें मेरा क्या? तो प्रीतम ने बोला अब की बार मैं आपको जो 1,06,000 जो है, मैं उसके साथ आपको 9% का इंटरेस्ट दूंगा पर एनम। तो विजय मान गया और जो ये इंटरेस्ट था उसने बोला कि मैं इमीडिएटली आपको कैश में अभी दूंगा, ठीक है। फिर जो सेकंड बिल, अब सेकंड बिल का अमाउंट तो नहीं बोला, बट हम समझते हैं कि इतना ही होगा। उसका पैसा अभी उसने चुका दिया और बोला उसकी एंट्री पास कर दो, ठीक है। अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। सिंपल, पहली एंट्री तो बहुत सिंपल होगी। ये 1 सितंबर की पहली एंट्री सी। यहाँ पे हमारा डेटर कौन है? प्रीतम। प्रीतम को हमने क्या बेचा? कुछ सामान। अब सामान का नाम नहीं बताते, सब सेल किया। प्रीतम टू सेल्स अकाउंट, ठीक। कितना? 1,06,000। अब इस क्वेश्चन में कुछ डिस्काउंट नहीं करवाया इसने। इसमें आप एक नई चीज़ सीख रहे हो, रिन्यू, मतलब एक बिल जो बनाया था उस बिल को कैंसिल करके दोबारा से बनाई दे। तो ये बिल, अब बिल बना है 3 महीने का। अब बिल बना है 3 महीने, तो पहले तो बिल बनाएंगे। बिल रिसीवेबल, सेल को हमें ख़त्म करना है। सेल को ख़त्म करेंगे और उसकी जगह हम किसका नाम रखेंगे? ये जो पहला बिल था, मतलब ये वाला बिल, ये थर्ड, मतलब 3 महीने बाद मैच्योर होने वाला था। और 3 महीने मैच्योर होने से पहले हमारा प्रीतम आके बोल रहा है कि बिल को रिन्यू कर दो। अब ये सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ही मैच्योर होने वाला था, ठीक है। अब वो आके बोल रहा है प्रीतम कि आप इसको रिन्यू कर दो, मैं उस टाइम पे नहीं पे कर पाऊँगा। तो हम बोला ठीक है। तो उसने बोला ठीक है, तो हमने बोला ठीक है।
तो अब जब ये पहली बिल जो बन चुकी है ये वाली, इस बिल को तो हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जब बुक में दो बार एक ही अमाउंट से दो बार एक ही बिल दिखे तब तो अलग दिखेगा ना हमारी बैलेंस शीट के अंदर। तो इसलिए हमें इस वाली को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। कैंसिल आउट करने की एंट्री क्या होगी, दोनों को रिवर्स कर दो। तो कैसे रिवर्स करेंगे, देखो, प्रीतम डेबिट टू बिल रिसीवेबल। इससे क्या हुआ, ये जो बिल रिसीवेबल था ये डेबिट से क्रेडिट होके कैंसिल आउट हो गया, और जो हमारा प्रीतम था जो स्टार्टिंग में डेटर था ये रहा, वो अब दोबारा डेटर बन गया, पैसा नहीं चुकाया तो दोबारा डेटर बन गया। अब वही अमाउंट एज इट इज़ छाप दो, 1,06,000, 1,06,000। अब नया बिल बनाना है हमें। अब नया बिल रिन्यू का टाइम कब आया था, 4 दिसंबर को आया था रिन्यू मांगने, तो 4 दिसंबर को ही नहीं, इसी बिल को हमें दोबारा बनाना है। पर हमने क्या शर्त रखी थी कि अब हमें सिर्फ 1,06,000 नहीं चाहिए, उसके साथ 9% चाहिए हमें इसके ऊपर ब्याज। तो और उसमें ब्याज हमें कैश अभी चाहिए, अभी। तो उसकी एंट्री क्या होगी, अब इंटरेस्ट क्या है हमारा, एक तरीके से प्रॉफिट है। जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उनको हमें क्रेडिट करना, और जितने लॉस होते हैं उनको डेबिट करते हैं। वो तो बेसिक रूल है, वो तो पता ही होगा। तो बनेगा प्रीतम टू इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट निकालना सिंपल है, आपको देखना पड़ेगा कितने महीने का ड्यू डेट का टाइम रखा है आपने। तो लेट्स सी, देखो इजी है, सिंपल है। देखो सिंपली आप पहले बिल का अमाउंट लिखोगे, कितना है, 1,06,000 लिखा, फिर कितने महीने, 2 महीने का, ओके, एंड देन 9%। जो भी अमाउंट आएगा आप यहाँ फिल कर दो। देखो 1,06,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9%, कितना आ रहा है, इतना। इसको राउंड ऑफ हम ले लेते, 999 कुछ आ रहा है, तो हम राउंड ऑफ करके कितना ले लेते हैं, 1,590। 1,590 ये हमारा कितना हो गया, इंटरेस्ट का ब्याज। इतना तो वो देगा ही प्रीतम, उसके साथ ये भी देगा साथ में, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पेज पे अब हम बनाएंगे अपना नया बिल जो रिन्यू किया है। अब नए बिल को लिखो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और कैश हमें रिसीव हुआ है, हमारे बैंक में आया ना पैसा, कैश अकाउंट इमीडिएटली, क्वेश्चन ने खुद बोला है इमीडिएटली, कैश अकाउंट टू प्रीतम। प्रीतम हमारा डेटर था, डेटर को हमें कैंसिल आउट करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और कैश हमें इमीडिएटली रिसीव हुआ है तो हमें दिखाना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट में। तो कितना, 1,06,000 का हमारा बिल, 1,590 हमारा ब्याज जो हमने इमीडिएटली मांगा था अभी उससे, टोटल डेबिट क्रेडिट कितना हो गया, 1,07,590, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि खुद क्वेश्चन ने बोला, अब ये आधा है पता नहीं क्या है, 2023 7 फरवरी को, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है दी सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट। अब सेकेंड बिल के बारे में कुछ तो बताया नहीं, बट इतना लिखा है तो हम ये अज्यूम करते कि पहले बिल का ही अमाउंट होगा, तो हम उसी को करते हैं। तो जब पैसा आ गया है तो कैश अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना, 1,06,000, 1,06,000। अभी जितने क्वेश्चन चल रहे बहुत सिंपल है। अभी हमने कौन कौन सा कर लिया, एक तो बैंक का डिस्काउंट वाला किया, पहला इलस्ट्रेशन, उसमें ये सीखा। दूसरे में हमने रिन्यू वाला केस सीखा। अब आगे देखते हैं, हम सारे इलस्ट्रेशन तो नहीं कर सकते, बट हम जो इम्पोर्टेंट होंगे, मतलब अगर जिसमें समय टॉपिक अगर कुछ नया आएगा उस इलस्ट्रेशन को हम उठाएंगे, और जिसमें सेम है वो तो आप खुद ही कर सकते हो। लेट्स सी नाउ सी दी थर्ड इलस्ट्रेशन। इसमें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, रिवीजन के लिए अच्छा है। रिबेट मतलब
टाइम से पहले आप बिल की पेमेंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अंकिता ने सेल किए हैं गुड्स 5 लाख के भाविका को, ठीक है। अब ये जो गुड्स हैं ये रहे फर्स्ट मार्च 2022, भाविका रिटायर हर एक्सेप्टेंस अंडर रिबेट 12%, ठीक है। अब ये 1 जनवरी को बिल बना रही है अंकिता, 1 जनवरी को बिल बना रही है, कितने महीने का, 3 महीने का। जब से बिल बन रहा है उसको नहीं गिनते, फरवरी मार्च अप्रैल। अब ये बिल की अप्रैल में मैच्योरिटी डेट होगी। अब ये 1 महीने पहले मार्च में भाविका पैसे दे, तो मतलब 1 महीने का हमें उसको रिबेट डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है। कर लेते, 3 एंट्री पास होगी, छोटी सी है। चलो, ये हमारा इलस्ट्रेशन 3, इसका पूरा का पूरा ये रहा। भाविका अकाउंट डेबिट 5 लाख टू सेल्स अकाउंट 5 लाख, बिल रिसीवेबल 5 लाख टू भाविका। 1 जनवरी को बिल बनाया, कितने, 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए। नरेशन मत बोलना भाई, अपना इतना तो खुद लिख सकते हो। 3 महीने के लिए बनाया। अब 3 महीना मतलब ये अप्रैल में जाके मेच्योर होने वाला था ये वाला बिल, ये मार्च में आ गया, तो आपको इसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट के लिए आप क्या यूज़ करोगे, रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट। बैंक में पैसा आया तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। ये बिल अब ये ख़त्म हो गया क्योंकि इसके पैसे रिसीव हो गए, तो इसको ख़त्म करने, कैंसिल आउट करने के लिए आपने इसको क्रेडिट किया 5 लाख। अब यहाँ पे रिबेट का कितना बोला है, 12% क्वेश्चन में, तो आपको 12% का रिबेट देना पड़ेगा किसको, भाविका को, 5 लाख के ऊपर। नाउ सी द प्रोसेस ऑफ रिबेट निकालने का। 5 लाख का हमारा था बिल, 1 महीने पहले उसने हमें दे दिया पैसा, मतलब मार्च में दे दिया, अप्रैल का पैसा मार्च में आ गया 1 महीने का, और 12% का रिबेट। ये देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, ये देखो 12% का रिबेट है ना, सी। तो वही किया, सी 5 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12%। राउंड ऑफ कितना रहा है, 1441999, तो हम राउंड ऑफ कर देते हैं इसको 5000। ये हो गया हमारा कितना रिबेट, 5000 का, और हमारा 5000 का रिबेट हो गया। मतलब अब हम ये जो 5 लाख है इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस कितना आया, 4,95,000, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा ख़त्म। आई थिंक अब सिर्फ रह रही है इंसॉल्वेंसी की, बाकी सब तो हो गया। देखो क्या क्या कर लिया हमने, डिस्काउंट बैंक वाला पढ़ लिया, बैंक डिस्काउंट जो बैंक से डिस्काउंट कराते हैं। सेकंड हमने एंडोस, उसी में था एंडोस। फिर थर्ड हमने रिन्यूअल का पढ़ा, बिल को रिन्यू करवाया, पहले बिल को कैंसिल करके दूसरा बिल बनाया। फिर ये जो हमने देखा रिबेट का, देखा रिबेट का कर लिया। अब बच रहा है हमारा इंस्टॉल्वेंसी। बाकी आई थिंक अब और कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि ज़्यादा हम छोटे मोटे सारे क्वेश्चन को करेंगे तो फिर मेन क्वेश्चन रह जाएगा ना। अब हम ये करके अगर इसमें और इम्पोर्टेंट लगे उसको करेंगे, फिर हम स्कैनर से जितने हैं ना, स्कैनर के पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये करके, सारे जितने हैं। तो इसलिए जितने हो रहे हैं अभी इतने कर लेते हैं, फिर स्कैनर के करेंगे। नाउ सी हमारा अक्यूमुलेशन बिल रह गया, सबसे मेन टॉपिक, सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन। क्या करते हैं, अक्यूमुलेशन बिल कर लेते हैं, उसी में हम इंसॉल्वेंसी कर लेंगे, दोनों टॉपिक उसी में कवर हो जाएगा। अक्यूमुलेशन में इंसॉल्वेंसी कर लेंगे, ठीक है, उसी के अंदर दोनों कवर हो जाएगा, इसी को साथ कर लेंगे अक्यूमुलेशन, ठीक। फिर सारा जितना टॉपिक है इसमें क्वेश्चन टाइप के वो ख़त्म हो जाएंगे। अक्यूमुलेशन बिल्स ये नया टॉपिक है, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, डिस्काउंट निकालने में लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आता है, बट कुछ नहीं है, सेम टू सेम जो अभी पढ़ा नया वही है, करते हैं। अब आप पूछो अक्यूमुलेशन बिल क्या होता है, पता तो होगा ही, यहाँ तक पढ़ लिया है, ये भी पता ही होगा। अक्यूमुलेशन बिल, ये इसको बिल कहना ही, अक्यूमुलेशन बिल कहना ही गलत हो, क्योंकि ये क्या दो लोगों के बीच का एक सेटलमेंट है, दो लोगों के बीच का एक सेटलमेंट है,
इसी क्या होता है कि यहाँ पे ए नाम का कोई व्यक्ति है और यहाँ बी नाम का कोई व्यक्ति है। ए बोलेगा मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, समझ लो ये दोनों फ्रेंड्स हैं। अब ए बोल रहा है मुझे पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। बी क्या कहेगा, मैं तेरे ऊपर बिल बना देता हूँ। बी बोल रहा है मैं तेरे ऊपर बिल बना देता हूँ और बैंक से पैसा ले लेता हूँ। क्या करेगा ये बी करेगा, ये बिल होगा, इसके ऊपर ए का नाम लिखेगा, मैं ए के ऊपर बिल बना रहा हूँ। अब बी क्या करेगा, बैंक में जाके डिस्काउंट, जैसे कि वैसे ही अगर 10,000 का 10,200 का कोई मैंने बिल बनाया, बी ने बोला कि मैं बिल बना देता तेरे ऊपर ए, बी ने ए के ऊपर बिल बनाया 10,200 का, बैंक में जाके डिस्काउंट करवा लेगा, बैंक 200 रुपये चार्ज ले ले, 100 रुपये ले ले, बाकी पैसा तो हमें दे देगी। उन पैसों को हम दोनों बांट लेंगे जो भी रेशियो होगा, ठीक है। अब बांट लेंगे और जो डिस्काउंट होगा, अब डिस्काउंट बी बोलेगा अभी जो खर्चा मैंने उठाया बैंक से जब डिस्काउंट करवा दें, तो ये मैं पूरा खर्चा क्यों लूँ, ये खर्चा भी हम दोनों बांटेंगे। तो यहाँ पे ये ही थोड़ा सा केस है, रेशियो निकालना पड़ता है कि जो डिस्काउंट, ये जो खर्चे का डिस्काउंट होगा वो किस रेशियो में बटेगा। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट कुछ नहीं है, मेरे पास एक सिंपल ट्रिक है, आप उससे करोगे हो जाएगा। फिर उसके बाद टाइम आएगा, मैच्योर डेट पे वो पे कर देंगे। फिर अगर नहीं मतलब नहीं कर पाएंगे तो फिर ए बिल बनाएगा बी के ऊपर उतने पैसे का, फिर वो उसको ऐसे ऐसे चलता रहेगा, दोनों की समझौता चलता रहेगा और ये पैसों को सेटलमेंट करते रहेंगे। बस यही केस है, एक टाइम पे आके एंड में एक इंसान इंस्टॉलमेंट हो जाता है, फिर सारा पैसा उसको पे करना पड़ जाता है। यही होता है सारे क्वेश्चन के अंदर। इसी में आप अकोमोडेशन बिल भी समझ लोगे और इंस्टॉलमेंसी भी आप देख ही लोगे। इतने क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है हमारा ICI का भाई, हॉटेस्ट क्वेश्चन है, वो हमेशा देता ही है, बेशक ऑप्शन में क्यों ना हो उसके साथ। बस पेपर में आता है ना, थोड़ा लेंदी होता है बट हो जाता है। ये कुछ नहीं है कि कुछ अलग से दे दिया जाए, जो बुक में होता है वही देता है और कुछ नहीं होता है। करते हैं इसके क्वेश्चन। सी देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है, सारे के सारे चीज़ें रिवाइज हो जाएंगे इसमें, इसके अंदर सारे कुछ आ रहे हैं। आओ, अभी जितने भी हमने क्वेश्चन बनाए हैं ना, हमने सारे ड्रॉअर की बुक में बनाए हैं। ड्रॉइंग की बुक में अभी एक क्वेश्चन भी नहीं किया हमने, याद रखना। क्वेश्चन आपसे ड्रॉअर ड्रॉई दोनों मांग सकता है, ड्रॉई भी मांग सकता है, ड्रॉअर भी मांग सकता है। अभी मैंने आपको सिर्फ ड्रॉअर के सिर्फ दिखाए हैं। सी इलस्ट्रेशन नंबर 10, एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन वाई, एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन वाई 30,000 1st April 2022 for 3 months for 3 months, and Y accept the bill and send it to X who get it discount किया इतना, and X immediately remit इतना to Y। मतलब ये 30,000 का बिल था, X ने बिल बनाया Y के ऊपर, 30,000 बिल को 3 महीने बाद मेच्योरिटी डेट है। अब ये जो बिल है इसको एक्स ने क्या किया, डिस्काउंट करवाया बैंक में, 28,800 आया, उस 28,800 में 9,600 वाई को दे दिया एक्स ने इमीडिएटली। अब डिस्काउंट कितने का हुआ, मतलब डिस्काउंट मतलब हुआ 1200 का। अब 1200 का कितना वाई उठाएगा और एक्स खर्चा उठाएगा, वो हमें निकालना पड़ेगा रेशियो। फिर जब मैच्योरिटी डेट आई, एक्स बोल रहा है कि मैं पैसे नहीं पे कर पाऊँगा, तो अब क्या करें, एक्स ने बोला चल ठीक है मैं तेरे ऊपर बिल बना देता हूँ, फिर पैसा आ जाएगा। तो उन्होंने दूसरा बिल बनाया 42,000 का, वो भी 3 महीने का बनाया। अब डिस्काउंट करवाया तो कितने का हुआ, 40,110 का। उसमें से कितना रुपया उसने भेज दिया हमारे वाई को, 6,700, ठीक है। अब इसमें भी डिस्काउंट का रेशियो निकालना पड़ेगा, बट 3 महीने मेच्योर होने से पहले ही ये जो बिल था हमारा, ये वाला 42,000 वाला, उस होने से पहले ही हमारा एक्स क्या हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, मतलब उसका दिवालिया उड़ गया, आगे इंसॉल्वेंसी, बैंकक्रप्ट हो गया। तो अब उसके ई स्टेट बेच के, मतलब घर वर सब बेच के कितना पैसा हम मैक्सिमम उठा पा रहे हैं, 50 पैसा, मतलब 50% ही हम उससे रिकवर कर पा रहे हैं, जितना भी उसका बनता है पैसा। वही बोलो, गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स
एंड वाई। यहाँ पे एक्स और वाई की दोनों की बुक में एंट्री पास करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स कुछ एंट्री तक तो ड्रॉअर रहेगा, कुछ एंट्री तक ड्रॉई हो जाएगा। यहाँ भी वाई कुछ एंट्री तक ड्रॉअर रहेगा, कुछ एंट्री तक ड्रॉअर हो जाएगा। तो हम एक्स की बुक में एंट्री पास करते हैं सिंपली तरीके से, फिर हम वाई की बुक में भी आपको सिखा देंगे, ठीक है। सी सिंपल एंट्री आपको तो पता है, स्टार्टिंग के कुछ तो आपको इतने कर लिए, इतना तो समझ आया ही होगा। इलस्ट्रेशन कहीं कहीं थोड़ा सा न्यू चेंजेस है, बाकी सब सेम ही है, कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, फालतू का हवा बना रखा है अकाउंट। तो बिल बनाया तो बिल की एंट्री लिखो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब बुक्स यहाँ पे लिख देना, बुक्स ऑफ एक्स, एक्स की बुक में हम एंट्री पास कर रहे हैं। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किसकी बुक में, वाई, वाई अकाउंट, वाई आई, ठीक है। कितने का, 30,000 का, 30,000। अब इस बिल का डेट क्या था, बिल बनाया था तो डेट तो होगा ना, डेट दिया है तो डेट मेंशन करना पड़ेगा, डेट नहीं दिया तो आप सीरियल वाइज लिख के कर सकते हो। यही डेट लिखेंगे हम, इसी तारीख पे जाके हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया हमने अपने बिल को, बैंक में पैसा आया हमारे, बैंक बुद्धू तो है नहीं, चालाक है, पूरा 30,000 का 30,000 तो हमें देने वाला नहीं है, वो 28,800 दे रहा है। तो डिस्काउंट चार्जेस वो कितना काट रहा है, 1200 का उसका डिस्काउंट अपना तो लेगा भाई। फिर 2, अब ये जो बिल है हमारा, बिल को कैंसिल आउट करेंगे, बिल रिसीवेबल 30,000 का, ठीक। अब इस बिल में भी हम ये जो 30,000 को डिस्काउंट करवाया 28,800 का, उसमें से हम कुछ पैसा, अब किसको हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं, हम अपने एक्स को, ठीक है, मतलब हाँ वाई को, एक्स की बुक में तो एंट्री करना है। अब हम वाई को पैसा देंगे, अब वाई को पैसा देंगे, कितनी तारीख को हमने दिया, इसी तारीख को दिया, क्योंकि अभी हमने पैसा डिस्काउंट करा, तुरंत ही देंगे क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत है। तो वाइज अकाउंट टू बैंक। अब डिस्काउंट चार्जेस जो है ये 1200 के, ये वाला ऊपर वाला, हम पूरा हम अकेले क्यों बेयर करें, जब हम ये 28,800 का पूरा फ़ायदा हम दोनों बांट के ले रहे हैं, तो अब इस नुकसान को भी हम दोनों एक साथ ही बांटेंगे। टू डिस्काउंट चार्जेस। अब ये वाला जो है ये इम्पोर्टेंट एंट्री है, इसको अच्छे से याद रखना, इसमें भी ये भी डिस्काउंट वाला, ये निकाल नहीं पाते, मैं आपको बिना रेशियो के सिखा दूँ तो अच्छे से सुनना। अब देखो, ये तो आपको मालूम है, क्वेश्चन बता रहा है कि बैंक में कितना जाएगा। देखो यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया है कि 9,600 हमारा कौन लेगा, वाई। तो ये हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं 9,600, जैसे लिखा है हम उसको लिखते हैं 9,600, हाँ 9,600, एक जीरो कम करो, 9,600। अब ये डिस्काउंट को हम कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट चार्जेस, सिंपल तरीका, बिल्कुल इजी तरीका, याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। आप सिंपली देखो डिस्काउंट कितने का करवाया और कितना खर्चा, कितना 1200 का खर्चा हुआ। अब देखो कि बैंक से जब आपने डिस्काउंट करवाया था तो आपके पास कितना पैसा आया था, बैंक ने कितना दिया आपको, बैंक ने मुझे दिया 28,800, ठीक है। अब बताओ कि वाई कितना अमाउंट, कितना रेशियो 28,800 का ले जा रहा है, हमारा वाई ले जा रहा है 9,600। अब जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा डिस्काउंट का चार्ज, ठीक है, निकालते हैं। अगर आया तो बढ़िया, आएगा क्यों नहीं, यही होगा तरीका, याद रखना, ऐसे करोगे कभी नहीं फंसोगे। 28,800 इंटू 9,600 कितना आ रहा है, 3,999, राउंड ऑफ कर दो, इसको 400 बना दो, मतलब 400 का नुकसान कौन भरपाई करेगा, हमारा वाई। अब टोटल देखो कितना हो रहा है, 9,600 प्लस 400 कितना हो गया, 10,000, तो 10,000, ठीक। यहाँ तक तो समझ आ गया होगी, सिंपल 3 एंट्री, ऊपर की एंट्री में तो कुछ था ही नहीं, ये थर्ड एंट्री में थोड़ा सा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
1200 का हमारा क्या है खर्चा डिस्काउंट कराते टाइम का। 28,800 क्या है बैंक से जब हमने डिस्काउंट करवाया कितना अमाउंट बैंक ने हमें दिया वो इनटू कितना पोर्शन हमारा वाई ले जा रहा है वो, एंड इसको कैलकुलेटर पे करना आ जाएगा आपका 400। बस अब आगे देखते हैं। अब ये बिल जो था 3 महीने बाद मैच्योरिटी डेट थी। अब हमारा एक्स इसको वाई हमारा इसको पे नहीं कर पाएगा, तो अब बिल बनेगा एक्स के ऊपर। अब एक्स ने बिल किया था वाई के ऊपर, तो ये वाई की जिम्मेदारी थी कि ये पैसा पे करेगा। अब बैंक को थोड़ी ना मालूम है कि ये दोनों ने एक्यूमुलेशन बिल बनाया सेटलमेंट का। अब वाई बोलेगा मैं तेरे ऊपर बिल बनाता हूँ, वाई बनाएगा एक्स के ऊपर बिल, फिर इन्होंने पैसा उठाया, अब फिर करेंगे वो जो ये अब तक रिपीट कर रहे हैं। चलो इसी के तरीके से करेंगे, वही रिपीट होगी। अब एक एंट्री थोड़ा सा वहाँ ट्रिकी कुछ नहीं है, बस आप पीछे का बैलेंस याद रखना पड़ेगा। जब यहाँ पे वाई ने पैसा नहीं दिया है तो आगे जाके भी उसको आपको ऐड करना पड़ेगा एक जगह जाके। वही चीज़ बहुत लोग भूल जाते हैं और इसी टाइम पे उनका 2 नंबर आराम से कट जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना, वो नहीं कटेगा कभी भी। बस मेरे तरीके को फॉलो करो। अब एक्स की बुक में हम अब वाई ने हमारे ऊपर बिल बनाया है तो हम एंट्री क्या होगी, कितनी तारीख को बनाया है 4/7/22। तो राइटिंग कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रही है। सुनो, वाइज अकाउंट टू बिल्स पेबल, क्योंकि अब हमें इस बिल की भरपाई करनी पड़ेगी। बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल एसेट होता है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी होती है। अभी हमारी लाइबिलिटी है, कितने की बना 42,000, ठीक है। अब ये 42,000 में मेरा खुद का शेयर जो है 6,740 का है, जो मुझे कौन देगा, मेरा वाई इस बिल को डिस्काउंट कराएगा और उसमें से मुझे 6,740 देगा। और 6,740 तो मेरे शेयर्स है, बट अगर जब डिस्काउंट कराते हैं तो बैंक खुद चार्जेस काटते हैं, उस चार्जेस में से भी डिस्काउंट का जो खर्चा होगा वो भी मेरे को वो बांटेगा, क्योंकि मुझे उसको बेयर करना पड़ेगा। तो हम उसको निकाल लेते हैं कितना नुकसान पड़ता है, ठीक है। बिल कितने का है, वर्किंग नोट यहाँ नीचे कर लेते हैं। वर्किंग नोट बिल था मेरा 42,000 का। इसमें से बैंक ने कितना दिया मुझे 40,110, ठीक है। ये डिस्काउंट करवाया तब, ठीक है। 40,110। अब यहाँ पे डिस्काउंट का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ये था एक्चुअल बिल, बैंक से इतना करवाया, इतना हुआ। बैंक से जब डिस्काउंट करवाया तो नुकसान हमें इतने का पड़ रहा है, ठीक है। अब इसको आप कैसे निकालोगे यहाँ पे डिस्काउंट, बहुत इम्पोर्टेंट, याद रखना। देखो ये जो यहाँ पे पहला बिल जो था हमारा कितने का था, 30,000 का था। 30,000 में 10,000 शेयर्स था हमारा वाई का, यहीं पे गेम है। 10,000 था वाई का। वाई जब 10,000 पे नहीं कर पा रहा था तो उसने कहा था कि मैं तेरे ऊपर बिल बना देता हूँ इतने का, 42,000 का। तो मतलब जो 20,000 का शेयर्स था वो आपका था ना। तो उस 20,000 को आपको यहाँ रखना, सिंपली जैसे बताऊँ वैसे करोगे, दिक्कत नहीं। 20,000 आप यहाँ लिए रखोगे, और आपका जो ये नया वाला है इसमें आपका कितना शेयर्स है 6,740 का, आप उसको ऊपर रखो 6,740। वरना आप अगर रेशियो में फंस जाओगे ना, पूरे फंस ही जाओगे। ये लिया, और जब आपने बैंक से डिस्काउंट करवाया तो कितना पैसा मिला आपको, इतना, और आपको नुकसान कितना हुआ, इतने का। ऐसे करोगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। देखो डिस्काउंट क्या आएगा, 20,000 प्लस 6,740, ठीक है, डिवाइडेड बाय एंड मल्टीप्लाई बाय, कितना आ रहा है, राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ करके
ये हो गया डिस्काउंट। ये जो 20,000 है ये याद रखना, ये आपका पहले वाले शेयर्स का, मतलब पहले वाले बिल का आपका शेयर है। पहले वाले बिल का शेयर जो 30,000 का बिल था उसमें से 10,000 जो था वो आपका वाई का था और जो 20,000 था वो आपका था। तो उस 20,000 को आपने ऊपर लिया। ये पहला पोर्शन है 20,000 आपके पुराने वाले बिल का, ये इस वाले बिल का जो आपका पोर्शन है, और नीचे आपका टोटल जो दूसरा बिल है जो बैंक से आपको रिसीव हुआ, और ये आपका नुकसान है जो आपको बैंक ने डिस्काउंट करते टाइम आपको दिया। तो आप एंट्री सिंपल आप पास करोगे, आप एंट्री तो सिंपल है। वाई के पास से आपको पैसा आ रहा है ना, तो वाई अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट डेबिट टू, ओ सॉरी ये एंट्री तो उन्हें पास कर लिया ना। बैंक पैसा आ रहा है तो सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। डिस्काउंट नुकसान भी आ रहा है तो नुकसान को हमें डेबिट करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट होता तो हम उसको क्रेडिट करते, बट नुकसान है तो हमें डेबिट करना पड़ेगा टू वाई अकाउंट। बैंक में हमारा कितना, हमारा पोर्शन तो बनता था 6,740 का, बट नुकसान भी है, नुकसान को भी झेलेंगे। 1,260 टोटल मिला कितना हुआ 8,000। ठीक है, यहाँ एंट्री ख़त्म। अब आएंगे हम बैंक्रप्सी पे। इसको करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, वाई का बुक खोलना पड़ेगा। अभी हम किसके बुक में हैं, एक्स के बुक में कर रहे हैं। अब हम वाई का बुक खोलेंगे। हम वो पूरी एंट्री कर लेते, चलो एक बार कर लेते, क्योंकि हमने सिर्फ ड्रॉअर की एंट्री की है, ड्रॉइंग की नहीं करी है, उसको कर लेते। फिर उसके बाद यहाँ पे गिनती के 2 एंट्री आएगी, एक्स का बुक क्लोज हो जाएगा, पर वो बुक की एंट्री आने से पहले हमें वाई का बुक खोल के वो बाकी जितनी एंट्री उसको पास करनी पड़ेगी। तो चलो उसको करते हैं। Now let's do in the books of y, books of y। ये जो हाफ एंट्री थोड़ी सी बची है उसको ख़त्म करते हैं। ड्रॉअर की बुक में बना लिया ड्रॉइंग। अब ये ड्रॉई क्या है, इसमें अक्यूमुलेशन है, दोनों ड्रॉअर एक टाइम पर, दोनों ड्रॉई एक टाइम पे। एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्योंकि पहले बिल को बनाया था एक्स ने वाई के ऊपर, तो यहाँ पे बिल्स पेबल लाइबिलिटी इसको पे करना था 30,000। नाउ बैंक में हमने इसको पैसे दे, ओ डेट मेंशन तो किया ही नहीं, देखो 1/4/2022, 1/4/2022 एक्स ने डिस्काउंट करवाया बैंक से, पैसा ट्रांसफ़र किया, पैसा कितना दिया 9,600। अब डिस्काउंट का चार्ज भी देगा वो, डिस्काउंट चार्ज 400 टू किसके पास से आ रहा है, टू एक्स अकाउंट। कितना टोटल हुआ 10,000। फिर यहाँ पे ये एंट्री ख़त्म हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, वाई बोल रहा था कि अभी लाइबिलिटी 30,000 पे करने के, वो बोला कि मैं अभी पे नहीं कर पाऊँगा। तो वाई ने बोला कि मैं तेरे ऊपर बिल बना दूँ, मतलब एक्स के ऊपर बिल बना। तो यहाँ पे एक नया बिल बनाया, ये इन्होंने ये बिल बनाया था 4/7/2022, क्योंकि जो ये पहला बिल था ये 3 महीने बाद मैच्योर होने वाला था। अब ये एक्स वाई बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं, वाई ने बिल बना दिया एक्स पे, फिर पैसे आ गया। अब ये वाला बिल बना दिया इन्होंने 42,000 का। बिल्स रिसीवेबल टू एक्स के ऊपर बिल बनाया इसने, कितने का 42,000 का, 42,000। अब इस 42,000 को वो गया बैंक के पास, कौन गया हमारा वाई, बैंक के पास जाएगा। इसी डेट को गया, सेम डेट, बैंक डिस्काउंट चार्जेस, डिस्काउंट, ओह मैंने दोनों एक साथ लिख दिया, डिस्काउंट चार्जेस एंड टू बिल्स रिसीवेबल। अब बिल तो 42,000 का है, बैंक ने हमें कितना दिया 40,110, तो डिस्काउंट हमारा कितने का हुआ 1,890 का। अब 1,890 जो है ये ऑब्वियसली वाई पूरा बेयर नहीं करेगा, इसमें से कुछ अमाउंट एक्स करेगा, कितना रेशियो करेगा वो हम रेशियो नहीं कर निकालेंगे हम,
सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया था। इस यहीं पे ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो हम y को जब मतलब x को जो भेजेंगे, कितना भेजा था हमने, ये देखो यहाँ पे निकाला था ना 1260, 2000 x का पिछला शेयर 3000 में 1000 मतलब 3000 का 30,000 का जो शेयर्स था उसमें से 10,000 y का था और y का था, तो बाकी कितना पोर्शन 20,000 पुराने शेयर्स का, मतलब पुराने बिल के शेयर्स का, और ये 6,740 इस नए बिल का। टोटल बैंक ने कितना दिया और ये डिस्काउंट करवा के कितना नुकसान आया, ये जो आया था ये वाला, यही नुकसान हम भेजेंगे, ठीक है। बट अभी तो हम ये निकाल रहे हैं, अब भेजने की बारी बैंक का अकाउंट में डालेंगे किसको, उसको भेजने से पहले हम एक चीज़ कर लेंगे। जब हमारे पास पैसा आया बैंक के पास से, हम जो 30,000 वाला जो बिल था उसको पहले पे आउट कर देंगे, 30,000। अब बिल्स पेबल, अब ये देखो ऊपर में बिल्स पेबल 30,000, ये जो बिल्स पेबल लाइबिलिटी था इसलिए क्रेडिट साइड था। अब इस लाइबिलिटी को कैंसिल आउट करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो बिल्स पेबल को डेबिट किया मैंने, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पैसा जा रहा, बैंक में आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, कितना 30,000, ये पहले बिल की पेमेंट हो चुकी है। अब इसमें से जो पैसा बचा 42,000 में से, वो जाएगा हमारा एक्स को, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा एक्स अकाउंट, अब यहाँ पैसा जा रहा है टू बैंक में कितना जा रहा है, कितना लेगा, 6,740 ले रहा है, टू डिस्काउंट कितना 1,260, ये हमने पीछे निकाला था, अभी पीछे निकाल लिया था, तो यहाँ ये टोटल कितना बन जाएगा 8,000, ठीक है। अब यहाँ पर आके हमारा जो y है, y हो जाता है कि इंसॉल्वेंट की x होता है। लेट्स चेक द क्वेश्चन, वेट, x बिफोर द मैच्योरिटी डेट, x बिकम इंसॉल्वेंट, ओके, x इंसॉल्वेंट हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा x इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो x की बुक में जाएंगे हम। अब x जो है हमारा, वो पे तो कर नहीं पा रहा सेकंड बिल की पेमेंट, अब यहाँ पे x की लाइबिलिटी थी, अब वो बिल तो हो जाएगा डिसऑनर, क्योंकि अब जब वो मेच्योरिटी डेट पे ही नहीं हो पाएगा तो बिल का होना ना होना बराबर है, बुक से तो हटाना पड़ेगा। अब जब यहाँ पे बिल्स पेबल हमारा क्रेडिट था, अब जब वो ही डिसऑनर हो गया बिल, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए डेबिट करेंगे, बिल्स पेबल टू वाइज अकाउंट, जितने का बिल था उतना टोटल अमाउंट लिखोगे, वो नहीं लिखोगे जो बैंक ने आपको डिस्काउंट करके दिया, टोटल अमाउंट आप 42,000 का लिखोगे, क्योंकि जब अगर आप इस बिल की मैच्योरिटी डेट आएगी तो बैंक के पास, जब बैंक जाएगा आपके वाई के पास पैसा लेने, बोलेगा कि एक्स ने बिल की पेमेंट नहीं करी, तो वो 42,000 पूरा मांगेगा, ना कि 41,000 वो जितना अमाउंट था, वो बैंक पूरा 42,000 आपको मैच्योरिटी डेट पे मांगेगा अगर एक्स ने पे नहीं किया तो 42,000 लिख दिया। अब कितना हुआ है, 50% बोला है, तो 15% निकालेंगे। वाइज अकाउंट बैंक ई स्टेट बेच के जितना पैसा आ रहा है उतना तो देगा ही ना, बाकी हम डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल देंगे। वाई को टोटल उसको कितना देना है, टोटल 28,000। अब बोलोगे 28,000 कैसे, है ना। अब ये देखो 28,000 का ब्रेक डाउन करूँ, पहला बिल था 30,000 का, 30,000 में 10,000 जो था वाई का था, तो 20,000 कितना हुआ, 20,000 किसका हुआ, एक्स का, ये आया 20,000 देने थे। फिर ये जो ऊपर में 8,000 दूसरे बिल का 8,000 ये आया, 20,000 प्लस 8,000 कितना हुआ, 28,000। 28,000 का 50% कितना होगा, ऑब्वियसली सिंपल टू बैंक 50% कितना हो जाएगा, 14,000। अब इसमें से 14,000 जो बचा, अब हमारा एक्स तो दे नहीं सकता, उसको डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल देंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट 14,000, ठीक। अब ये जो एंट्री है अब जाएगी हमारे किसके अकाउंट में, वाई के अकाउंट में, ठीक है। पेज टर्न आउट कर लूँ। अब यहाँ पे भी एंट्री डिसऑनर हुई है, डिसऑनर की तो दोनों, जब हम
एक बिल बनाते हैं तो दोनों बुक में एंट्री जाती है, इधर भी और उधर भी, ड्रॉअर के बुक में भी, ड्रॉई की बुक में। अब हम आ गए हम ड्रॉअर के बुक में। अब यहाँ से भी हमें एंट्री को कैंसिल आउट करेंगे। एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 42,000, इतने का बिल था 42,000। अब वो कितना लाभ पाया बैंक में 14,000 तो उसके ई स्टेट बेच के तो आ गए, ई स्टेट बेच के 14,000 आ गए। 2x टोटल x को देना कितना था 28,000, बाकी जो 14,000 बच गए अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसको बैड डेट में डाल देंगे, बैड डेप्थ। अब वैसे भी वो कभी नहीं मिलने वाला, बैड डेट में डाल के उसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस जो थे कर लिए। इसका हो गया बैंक डिस्काउंट वाला, बैंक से जब डिस्काउंट कराते हैं। एंडोर्स का हो गया, रिन्यूअल का करवा दिया, रिबेट का करवा दिया, इंसॉल्वेंसी का, और इसके साथ मैंने अकोमोडेशन बिल भी करवा दिया। तो इसमें बाद में आई विल चेक आउट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे टाइप के मिल गए तो वो कर लेंगे। फिर आपको मिल जाएंगे 1-2 दिन में स्कैनर के साथ इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, इम्पॉर्टेंट पास्ट ईयर के क्वेश्चन। तो टिल देन यहाँ के लिए इतना इनफ करते हैं। तो प्लीज़ बताना कैसा लगा आपको ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग। The next day.